Good morning, student. Today we discuss the water, fifth chapter of geography. In this chapter we discuss about hydrosphere, water and hydrological cycle, and impact of water bodies on the climatic condition. You all know that our planet Earth, is unique planet. Why unique planet? Because the presence of water, that is called uniqueness. Now the water cycle. Through this diagram, and also we study this water cycle in science also. When water warms up in presence of sun ray, that water converted into vapor, and vapor rises and cool down and condenses to form clouds. Due to this causes rain, snowfall, hailstorm, and the water return to the earth, falling on land or sea. Water that falls on land collect in a rivers which carry it back to the ओशियन, रन ऑफ होकर के वो कहाँ पहुंचेगा? नदी में, नदी से फिर ओशियन में. दिस कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. ओशियन से इवेपोरेशन शुरू हुआ था और यहाँ रन ऑफ होकर के फिर ओशियन में जा रहा है. तो ये जो साइकिल है वो अनवरत चलते रहता है. दैट इज कॉल्ड वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. यू ऑल्सो सो एक्सप्लेन दिस टर्म थ्रू दिस डायग्राम. नाउ certain human activities such as cutting down the tree, pollution, water bodies and wasting water has affected the water cycle adversely. Man must make effort to conserve this precious resources. मतलब आदमी को कुछ इस तरह का काम करना चाहिए जिससे कि ये जो प्रीशियस रिसोर्स है इसको हम बचा के लंबे समय तक रख सकते हैं. Water is renewable, recyclable resources, and we must take a strong resolve to conserve water. 22nd March is celebrated for World Water Day. This is the world map, and so the water, ocean, river, and way to conserve water. देखिए अभी जो आपका एग्जाम है वो एमसीक्यू टाइप के रहेंगे, उसमें 4 ऑप्शन है, एक जैसा कि आपने दिया था. लेकिन ये जो है कि वे टू कंजर्व वाटर, ये दे दिया जाएगा कि राइट 5 वे टू कंजर्व वाटर. तो ये लॉन्ग में बनेगा, आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो उसका भी आपको तैयारी करना है. ओके, तो इसमें आइए. इंश्योर ऑल टैप एंड एप्लियंसेज आर इन ऑर्डर. अवॉइड फ्लशिंग ट्रैश इन द टॉयलेट. यूज बकेट for watering plant. Use water in which fruit and vegetable have been washed to water potted plant. Any water left in the bottle should be poured in water a plant rather than throwing the. ये सब प्रक्रिया क्या है? ये सब हम लोग रीयूज कर रहे हैं वाटर का. जैसे देखिए वॉशिंग मशीन ओनली विथ ए फुल लोडेड रीयूज द वाटर यूज्ड फॉर रिंजिंग क्लॉथ. इससे क्या होगा? एक बार हमने इस्तेमाल किया, उसी पानी का इस्तेमाल हम कपड़े धोने में, वाटरिंग प्लांट में, इस सब में कर रहे हैं. उसके बाद मेक रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी. रेन वाटर हार्वेस्टिंग कीजिएगा. एक पानी का जो हमारा रन ऑफ होता है, छत पर से जो पानी जाता है, बह जाता है, रन ऑफ हो जाता है, उसको हम जमा करेंगे. रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा, वाटर लेवल नीचे नहीं जाएगा. ये सब. तो यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन है कि हाउ इज वाटर बीइंग मिसयूज. कैसे मिसयूज होता है? जैसे आप ब्रश करते हैं और पानी जो है वो फ्लो हो रहा है, शेविंग करते समय आपने देखा होगा. व्हाट कैन बी डन कंजर्व वाटर. वाटर को कंजर्व करने के लिए कौन कौन से तरीके को अपनाया जा सकता है. उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. यू ऑल नो दैट 70% ऑफ अर्थ सरफेस हैव वाटर, बट ओनली 29% ऑफ द लैंड वाटर. द वाटर इज फाउंड इन ओशियन, सी, लेक, रिवर. The domain of water is called hydrosphere. वाटर रखने वाला जो जगह होगा that is called hydrosphere. 2/3 of earth covered with water, but only 3%
of water is for human consumption. 97% of water on the earth is saline water, namkeen water, and is found in ocean and sea, which is not suitable for human consumption. And in 3%, only 2% in the form of ice cap or glacier, only 1% is suitable for surface water and human consumption, in found in, that is called fresh water, and found in river, lake, groundwater, or the gaseous form of water in the atmosphere. Fresh water is most valuable natural resources and must be used judiciously without wasting and polluting them. What do you mean by Dead Sea? Dead Sea, the amount of salt in the ocean water is called salinity. It means that 1 liter of ocean water contains 35 gram of salt. 1000 ग्राम में 35 ग्राम जो है वो साल्ट रहता है जनरली ओशियन वाटर में, लेकिन यही परसेंटेज जो है कि 240 ग्राम और मोर देन 240 ग्राम, 1 लीटर में 250 ग्राम अगर नमकीन है पानी, साल्ट की मात्रा है, तो सोचिए वो पानी का कंजम्पशन कहाँ होगा। ना तो पीने के लिए कर सकते हैं, ना और किसी काम में, तो दैट इज कॉल्ड डेड सी। ओके, मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। अब देखिए यहाँ पे आप जानते हैं इससे पहले भी कि पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है एंड अंटार्कटिक ओशियन। दीज ओशियंस हैव ए मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट एंड इट्स मूवमेंट कैन बी कैटेगराइज एज वेव्स, टाइड एंड करेंट। इन तीनों में हम बांटते हैं। ये मूवमेंट जो है किसके कारण होता है? टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड प्रिवेलिंग विंड्स के कारण होता है। ओशियन वाटर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं होता है बिकॉज वो सैलिनिटी होता है, उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। वेव्स की चर्चा करेंगे तो waves when surface water of the ocean tides are fault alternately then are called waves. वेव्स जो है वो निर्भर करता है स्पीड ऑफ द विंड पे। अगर ये लाइट ब्रीज रहेगा तो जेंटल वेव्स होगा, लेकिन स्ट्रांग विंड होगा तो दैट इज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन, और उसी ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन को सुनामी कहा जाता है। भारत में 26 दिसंबर 2004 में सुनामी हुआ था, जिसके कारण इंदिरा पॉइंट जो हमारा सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट है जो पार्टीशन का, वो सबमर्ज हो गया था उसी में। अब कुछ पॉइंट आपका सुनामी के बारे में। सुनामी का मतलब क्या होता है? ये एक वर्ड है, सू मीनिंग जो होता है हर्बर और नामी मीन्स वेव्स, इससे बना हुआ है। और 26 दिसंबर को जो सुनामी आया था उसका जो कारण क्या था? तो अर्थक्वेक कॉल्ड द सुमात्रा अंडमान अर्थक्वेक एंड इट्स एपीसेंटर वाज द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सुमात्रा इन इंडोनेशिया। और इससे क्या हुआ? बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन और डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिला था। भारत के वो एरिया, खासकर जो कोस्टल एरिया हैं, उन सब में बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन देखने को मिला था। इसके साथ ही बांग्लादेश, मालदीव, ईस्ट अफ्रीका, सोमालिया, केन्या, इसमें भी प्रभाव पड़ा था। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था वो देखिए, 18 लाख लोग पीपल जो थे वो लॉस्ट हो गए, 42,000 पीपल वो रिपोर्टिंग मिसिंग। और ये जो घटनाक्रम था इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है हमारे देश के द्वारा, दूसरे देश के और इंटरनेशनल एजेंसी ये काफ़ी ज़्यादा मदद की इसमें लोगों को, लेकिन फिर भी इस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये रहा कि इस सुनामी के द्वारा हमारा जो अंडमान निकोबार आइलैंड में द इंदिरा पॉइंट है, which was the southernmost point of India in Andaman and Nicobar Island, was completely submerged. Okay, in next video we discuss about tides and question answer. Okay, thank you very much.